We were talking about metals in the last class, and we talked about the physical properties and chemical properties of metals in last two classes, and I already uploaded both the videos on YouTube. Now we are moving towards the third lecture of the metals. So I just try to start today's class with reactivity series. All right, reactivity series. अब reactivity series का मसला क्या है? अगर हम metals की बात कर रहे हैं, right now we are talking about metals. So reactivity series में you need to keep remember this, that the metals that have the lowest number of electrons are the more reactive metals. ठीक है ना? तो group 1 वाले जिनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो that would be very easier for them to lose that electron. तो group 1 वालों के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, वो लूज कर देते हैं. ठीक है, that is why the group 1 metals are the highly reactive metals. group 1 वाले जो metals होते हैं बच्चों, वो highly reactive metals होते हैं. And I think you all know that group 1 periodic table में आपने पढ़ा था. You remember over there the trend that down the group reactivity increase होती है. यानी कि जब आप नीचे जाएंगे तो reactivity increase होगी, तो नीचे वाले metals ज्यादा reactive होते हैं, ऊपर वाले कम होते हैं group 1 में. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप group 1 को लिखो तो you need to keep writing them in the reverse form. So you can say that lithium, जैसे आपके पास lithium है, sodium है, potassium है, rubidium है, cesium है, francium है. So you can write all these metals in this way. The francium is the most reactive metal in the world, right? इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा reactive francium है, but unfortunately this is not available in the world. बड़ा मुश्किल से मिलता है, rare है, बहुत ही बेकार सा मेटल है, मिलता ही नहीं है ना, but है highly reactive. तो हम बात नहीं करते francium की, हम बात करते हैं cesium की. cesium क्योंकि available है दुनिया के अंदर, so we can say that the cesium is the most reactive metal in the world. Right, but right now you are in O levels, so we don't need to discuss these all metals. सारे metals की हमें बात नहीं करनी. We just need to talk about two of them, जो कि आपके पास कौन से हैं भाई? Potassium and sodium. बस ये दो की बात करेंगे, इस ज्यादा की बात नहीं करेंगे, because they are most useful metals. Right? Then definitely एक इलेक्ट्रॉन के बाद ग्रुप 2 आता है, जिसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं as compared to group 1. group 1 से थोड़े से कम but highly reactive ये भी होते हैं. group 1 से थोड़े कम होते हैं comparatively, but they are also the good reactive metals. So you can say that अब आपके पास group 2 के अंदर जो दो useful metals हैं, you can talk about that period 2 and period 3. So उसके अंदर आपके पास period 3 and 4. So you can say that calcium and magnesium, इनको भी उल्टा करके हमने लिख दिया because down the group इनकी भी reactivity increase होती है. ठीक है ना? फिर आ जाता है group 3. तो group 3 के अंदर we have aluminum metal that we need to discuss in reactivity series. ठीक है ना? इसके पास 3 electrons हो गए. Then we have transition metals. अब transition metal तो बहुत सारे हैं बच्चों. अब उनकी बात करते वक्त हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है याद करने में ना रिएक्टिविटी सीरीज को. तो मैं ट्रांजिशन मेटल को याद कराने के लिए एक वर्ड यहाँ लिखता हूँ, दैट इज मैजल. ठीक है ना? मैजल, एम मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जिल मींस व्हाट? जिल का मतलब होता है आपके पास जिंक, आयरन एंड लेड. ये आप इस तरह याद कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन से दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. Copper, silver, gold. So this is what the reactivity series that you need to keep remember from here, which is the most reactive metals to the least reactive metals. Right, bacho? Now you need to keep remember few distributions in this reactivity series, that these three metals, the upper one, these three metals are highly reactive metals. These three metals are highly reactive metal. If you remember in salts we talk about this, कि अगर आपने ये तीन metals के salts बनाने हैं तो आप इनको acids में नहीं डालोगे, क्योंकि they will explode, they will be explosive over there, right? Then यही बात हमने वहां पर और भी की थी कि अगर आप इन तीन metals की बात करो तो इन तीन मेटल्स में दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है ये, मतलब इनके रिएक्शंस बहुत कम है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गोल्ड एज अ ज्वेलरी पर्पस. हम उसको हाथों में अंगूठी बनाकर भी पहन लेते हैं, हम हाथों में ब्रेसलेट बनाकर भी पहन लेते हैं, हम गले में भी पहन लेते हैं. पसीनों से, बारिश से, पानी से, किसी से उनको कुछ नहीं होता, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव. पानी से तो रिएक्शन करते ही नहीं, रस्टिंग बहुत दूर की बात है. ठीक है ना?
सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बट ये जो बीच वाले ना ये अच्छे हैं, दे आर मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम की तरह कि हाथ पे रखें और फट जाए, हाथ के पानी से ही रिएक्शन कर लें, और इतने भी लीस्ट रिएक्टिव नहीं है कि वो बारिश के पानी से भी जंग ना खाएं। दे आर मॉडरेट रिएक्टिव, they can react with water, but in you can say that with a few temperature readings over there, right? उसके साथ कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलें, let's talk about why they are highly reactive and why they are least reactive. So you need to keep remember these three are highly reactive because they can even react with cold water एंड हॉट वाटर। देखो हॉट वाटर से तो कोई भी चीज रिएक्शन कर लेगी क्योंकि गर्म पानी होगा, टेम्परेचर होगा, सो द पार्टिकल्स आर मूविंग विद मोर एनर्जी, सो इट्स easier to react in hot conditions. But if you talk about cold conditions and even the substances reaction going to do some reactions over there in cold conditions, that means the substance is highly reactive. So these three metals are highly reactive. They are even showing the reactions in cold conditions. कम टेम्परेचर पे जब पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, वहां पर भी अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन शो करे, सो यू कैन इवन अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल, कितना रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। एंड व्हाई दे आर मॉडरेट, बिकॉज दे जस्ट शो द रिएक्शन इन हॉट कंडीशंस विद वाटर एंड दे इवन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी अच्छे से रिएक्शन करते हैं, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि तो है ही बहुत हाईली रिएक्टिव ना। And why they are least reactive, the last three metals, why they are least reactive, they will not react with water and they can even not react with dilute acid. मतलब dilute acid के साथ भी यार रिएक्शन नहीं कर रहे हो, कितना कितना लेस रिएक्टिव हो तुम, कितना लेस रिएक्टिव हो। अगर एग्जाम में लिखा हुआ हो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है, तो हरगिज ना लिखना कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बच्चों, दिस इज शोइंग नो रिएक्शन, ठीक है ना। कीप रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एमसीक्यूज में आपको तंग करने के लिए आ सकता है। Is that clear, every one of you? Yes, sir. दूसरी बात ये है कि बच्चों आपने यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, अगर आप इसको रिडॉक्स सीरीज कहते हो, इफ यू वांट टू कॉल दिस सीरीज एज अ रिडॉक्स सीरीज, सो यू कैन इवन से दैट, जो कि मैंने कल भी आपको दिखाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बच्चों, यू कैन इवन से दैट कि सर हाईली रिएक्टिव metal can reduce the less reactive metal from its salt, you can even say like this, right? Because ये आपके पास redox series भी बन सकती है। अगर आप इसको redox series बनाना चाहते हो, so you can say that कि reduced कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, reduced कर रहा है, तो ऊपर वाला जो होगा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, लेस रिएक्टिव, कर कौन रहा है, हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव क्या हो गया आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। सो यू कैन से दैट ऊपर वाले सबसे, यू कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्विकली। तो जितना रिएक्टिव होगा वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो यू कैन से दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ होगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर स्लोएस्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट this is even a redox series, you can call that a redox series as well. And if you remember, according to electrolysis, so we place hydrogen over here in electrolysis, and we know that in aqueous solutions of the salts, कोई सा भी सॉल्ट हो, मतलब ये सारे मेटल्स का, इन सारे मेटल्स का कोई भी सॉल्ट हो, एक्वस हो, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। अगर इन तीनों का सॉल्ट होगा तो फिर ये कैटाइन बन सकता है, क्योंकि वो ज्यादा लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इलेक्ट्रोलिसिस में भी इसका काम है रिएक्टिविटी सीरीज का। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट वन न्यू थिंग ओवर हियर, व्हिच इज एक्चुअली, यू कैन से दैट, यहाँ पर हम एक नई चीज ऐड जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्या, जो कि हमें पढ़ना है, दिस इज
the extraction, right? So you need to keep remember कि यहाँ पर आपके पास आता है कार्बन, यहाँ पर आपके पास क्या आता है कार्बन, और हाइड्रोजन तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ. They are not metals, but they can form positive charge. That is why we are writing these two elements over here. Now you need to keep remember बच्चों कि ये वाले जो metals हैं, ये वाले metals जो कि आपके पास कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और ये वाले metals जो कि कार्बन से लेस रिएक्टिव हैं. So अभी आपने रिडक्शन की बात की, so you can see this, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिड्यूस कर सकता है. तो you can simply say that कि ये जो कार्बन से नीचे वाले सारे हैं, they can be reduced by carbon, right? So you can say that ये वाले जो सारे हैं can be reduced by carbon, can be reduced by carbon. मतलब कार्बन की प्रेजेंस में अगर आप इनका रिएक्शन कराओगे तो whatever they have वो कार्बन छीन लेगा इनसे, ठीक है ना. और इवन ये जो तीन है ये तो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है. So you can say that they can be reduced by hydrogen as well, by हाइड्रोजन एज वेल. ये हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो सकते हैं, कार्बन से भी हो सकते हैं. तो अगर इन मेटल्स को अकेला करना है, मतलब जिंक को, आयरन को, लेड को, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को आपको अकेला चाहिए, जाहिर सी बात है जमीन से इनको निकालोगे तो दे विल बी इन द सॉल्ट्स फॉर्म, ठीक है ना. तो अगर आप इनको अकेला एलिमेंटल स्टेट में चाहते हो, जाहिर सी बात है कोई भी चीज आपको बनानी है किसी भी मेटल्स की, तो दे शुड बी इन इंडिविजुअल स्टेट्स ना. सो इफ यू वांट देम इन इंडिविजुअल स्टेट्स, यू मस्ट हैव देयर एलिमेंटल स्टेट ना. तो अब उनको सॉल्ट में से अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्ट में से अलग करना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, हाईली रिएक्टिव से रिएक्शन कराओगे तो वो अकेला हो जाएगा. तो ये सारे मेटल अकेले हो सकते हैं जब आप कार्बन से रिएक्शन कराओगे. जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन से भी कम है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन से भी अलग हो सकते हैं. हाँ, प्रॉब्लम क्या है इन मेटल्स की, ये जो 5 मेटल्स हैं, इन 5 मेटल्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, हाउ कैन यू डू दिस. कार्बन, इनके लिए आप क्या करोगे बच्चों, ये वाले तो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो कार्बन से कैसे रिड्यूस होंगे. No, which metals can be reduced by carbon? All the metals that are below carbon reactivity. Okay. All the elements that are below in reactivity series than carbon, they can be extracted by carbon, right? So they can be reduced by carbon, and the one which is less reactive than hydrogen, so they can be extracted or reduced by hydrogen. The problem is between with these elements. How can we extract these elements? So you need to keep remember that agar inko alag karna hai, so we need to do what? Electrolysis of their molten salts. Electrolysis of their molten salts. इनके molten salts की electrolysis करना पड़ेगी. ये आपने याद रखना है. अगर आप aqueous लिख दोगे तो aqueous में तो less reactive चला जाएगा और हाइड्रोजन प्रोडक्ट बन जाएगी, कैथोड में मेटल नहीं बनेगा. तो हमें molten salt लेना है इनका. ये बात अपने ध्यान में रख लो, इसको क्लियर कर लो इस कॉन्सेप्ट को कि इसको हमें कौन सा लेना है बच्चों, इसकी हमें लेनी है molten state. Is that clear everyone of you? Yes बच्चों. चलें, अब हमारे सिलेबस में इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि हमें करनी होती है. इनकी कुछ एग्जांपल्स हमें दिखाई गई हैं हमारे सिलेबस में, ताकि आपके पास आपको ये बात क्लियर हो जाए. तो हमारे सिलेबस में कुछ एग्जांपल्स जो दिखाई गई हैं वो कौन कौन सी दिखाई गई हैं. हमारे एग्जांपल जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हमारे सिलेबस में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हमारे सिलेबस में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हमारे सिलेबस में, मतलब पास पेपर्स में भी देखी जाती है कॉपर वाली. आयरन वाली और एल्युमिनियम वाली तो है, फैक्ट है, इस सिलेबस में. कॉपर वाली मैं पास पेपर्स की वजह से करा देता हूँ, और जिंक वाली मैं कराऊंगा IGCSE वालों जो बच्चे हैं उनकी वजह से, ठीक है ना. सो वी हैव 4 एक्सट्रैक्शंस ओवर हियर. सो यू कैन सिंपली से दैट कि यार एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो वी मस्ट यूज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. जिंक और आयरन को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है सो वी नीड टू यूज कार्बन, और अगर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है सो वी नीड टू यूज हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर बच्चों? यस बच्चों. यस सर. चलें, तो लेट्स स्टार्ट with the first one, that extraction of aluminum, right? We need to start with extraction of aluminum from its ore, right? So this color is new, so we can use this one, extraction of aluminum.
extraction of ammonium from its ore, from its ore. And what is the name of its ore? You need to keep remember the name of its ore is bauxite. The name of its ore is bauxite. इनकी जो ore जमीन से निकलती है वो bauxite के नाम से होती है, ठीक है? Right? Yes. Yes, sir. चलें तो अब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे. Why we are going to do electrolysis in this method? You need to keep remember this is bauxite and the formula of this is Al2O3. You can say that the reason of extraction through electrolysis is ammonium is more reactive than carbon, right? So you need to keep remember this. We need to extract it from molten salt, ठीक है ना? तो हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस. क्या करेंगे इसकी? इलेक्ट्रोलिसिस of molten bauxite ore, and which is actually Al2O3. Is that right, बच्चों? Yes, sir. And for this we need to draw a cell, electrolytic cell for this. And the electrolytic cell of this can be draw like this कि एक आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक कंटेनर होता है, ठीक है ना? It is a container like this, ठीक है ना? एक कंटेनर आपके पास होता है, इसमें ये इस तरह का आपके पास एक कंटेनर होता है, ठीक है? कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैंने, आप ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना सकता मैं जल्दी में. सो अगर थोड़ा सा अगर मैं टेढ़ा बना दूं तो प्लीज माइंड मत करना. आप लोग अपनी कॉपी में अच्छा सा बना लेना, ठीक है भाई? तो ड्राइंग बनाने के लिए नहीं आती पेपर में, लेकिन क्योंकि अभी हम इसकी बात करें तो इसकी डायग्राम्स बहुत आती हैं पेपर में. एमसीक्यूज में आपको देखते ही फौरन पहचानना है कि भाई ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड. सो दिस इज व्हाट, हमारे पास अल्मोनियम ऑक्साइड आ गया, ओ सॉरी कंटेनर आ गया. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास अल्मोनियम ऑक्साइड होगा मॉल्टन स्टेट में. सो आई जस्ट हैव दिस इन द मॉल्टन स्टेट. ये आ गया आपके पास अल्मोनियम ऑक्साइड इन द मॉल्टन स्टेट, ठीक है? तो लिक्विड फॉर्म में यू कैन से दैट कि मेरे पास क्या आ गया? मॉल्टन अल्मोनियम ऑक्साइड मैंने इसमें रख लिया, ठीक है ना? जितना आप चाहें इसमें रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास लगे हुए होते हैं कार्बन एनोड्स. यहाँ आपके पास लगे होते हैं कार्बन एनोड्स. सो दे आर लाइक दिस. यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से, आप ऐसे बना लें इसको, कुछ इस तरह से आपके पास कार्बन एनोड्स बने हुए होते हैं. दो बना लें, तीन बना लें, आपकी मर्जी है. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में आपको दो बने हुए नजर आएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपको तीन भी बने हुए नजर आएंगे. तो आपकी मर्जी है, आपको जितने बनाने हैं आप बना सकते हैं, ठीक है? सो राइट नाउ these are actually carbon anodes, or you can say that graphite anodes, and we know that positive is anode, right? So these are anodes, and you can say that these are carbon anodes, and carbon, or you can even call them graphite. These are graphite anodes, ठीक है ना? ये ग्रेफाइट एनोड्स आ गए और फिर ये इस तरह से क्लोज कर दिया हमने, ठीक है ना? द थिंग इज यू नीड टू कीप रिमेंबर ओवर हियर, ये जो कंटेनर है ना आपके पास, ये देखें मैंने इसमें दो लाइंस क्यों बनाई है? क्योंकि जो कंटेनर अंदर से है इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ये सॉरी नेगेटिव टर्मिनल, ये कैथोड होता है, ठीक है ना? ये जो कंटेनर है दिस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, एंड वी नो दैट नेगेटिव इज कैथोड. तो ये आपके पास होगा कैथोड. यू कैन से दैट कि जो कंटेनर का नीचे वाला पार्ट है वो बना हुआ है आपके पास कैथोड, और ये जो आपके पास एनोड लगे हुए हैं ये ग्रेफाइट के, ठीक है? ये हमने लगा दिए इसके अंदर. तो प्रोसेस अब स्टार्ट होगा. बट वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर ओवर हियर इज बच्चों कि आपने यहाँ पर एक चीज यूज करनी है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आती है, आपको पता होनी चाहिए. वो क्या चीज है? ओवर हियर इज इफ यू रिमेंबर योर आयोनिक बॉन्डिंग. सो हमारे पास अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl इज जस्ट पॉजिटिव वन एंड क्लोरीन इज जस्ट नेगेटिव वन. तो इन दोनों का जो कंपाउंड होता है वो NaCl बनता है.
ये एक ionic compound है, and ionic compounds have high melting and boiling points. So just for your reference, the melting point of NaCl is actually 801 degrees Celsius. So you can consider this यार, सिर्फ मतलब NaCl जो हम घर में आमतौर पर यूज करते हैं, इतना छोटा सा क्रिस्टल है, उसको मेल्ट करने के लिए 801 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आपको. So just think about this कि अगर एल्युमिनियम का चार्ज 3+ हो और ऑक्सीजन का चार्ज 2- हो, तो चार्ज मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो इनकी अट्रैक्शन कितनी बढ़ गई होगी. जब इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा. सो इट मे बी समवेयर 1200 और 1500 समवेयर ना, कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी. इट विल बी कॉस्टली फॉर अस ना. सो वी नीड टू यूज समथिंग व्हिच रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट. सो ओवर हियर वी यूज वन मोर थिंग along with aluminum oxide, which is known as cryolite, right? We need to use this thing along with aluminum oxide. So this is aluminum oxide that we are using over here along with cryolite, and cryolite is the substance which is used to reduce the melting point, right? Cryolite is a substance which is used to reduce the melting point. So you can make your notes on side. You can say that the main thing over here is cryolite is used to reduce the melting point, melting point of aluminum oxide. Or you can even say that this is one of the financially problem. You can save your financial issues by this. You can even say that, in other words, alternate, you can say that to save cost of the process. बहुत ज्यादा कॉस्टली होने से बेहतर है कि हम इसके अंदर कुछ क्रायोलाइट यूज कर लें, एंड इट विल बी ऑब्टेन कंप्लीटली बैक. उसमें कोई यूज नहीं होगा, ये तो खराब नहीं होगा, ये हम वापसी में ले लेंगे वापसी. ठीक है. नाउ वी नो दैट वी हैव एल्युमिनियम आयंस ओवर देयर एंड वी हैव ऑक्साइड आयंस ओवर देयर. सो कैथोड पे क्या होने वाला है बच्चों? कैथोड इज एक्चुअली नेगेटिव. Cathode is actually what? Negative terminal. You can say that negative is cathode, so definitely it will attract positive ions towards itself. So you can say that aluminum ions वहां होंगे, ये attract करेगा by gain of 3 electrons. It will be form what? Aluminum metal over there, right? So you will get aluminum metal and it will start depositing in the bottom because देखो मैं इसकी लाइन स्ट्रेट बना रहा हूँ क्योंकि मेटल है, तो ये आ गया आपके पास मेटल, राइट? तो ये नीचे आ जाएगा, जमा होकर कंटेनर में नीचे जमा हो जाएगा. So you can say that this is what? Aluminum लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है ना, मेटल है तो लिक्विड फॉर्म में हो क्योंकि इस पर टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है. एंड व्हाट हैपन एट एनोड बच्चों? एनोड पे क्या होगा? राइट नाउ वी हैव ऑक्साइड आयंस, राइट, व्हिच नीड टू मूव टुवर्ड्स एनोड बिकॉज़ पॉजिटिव इज एनोड, राइट? तो नेगेटिव आयंस की तरफ जाएंगे. तो ऑक्साइड आयंस लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन इज ऑलवेज डायटोमिक, तो वो अकेली नहीं हो सकती. तो if you want to put 2 over here, so you must need to have 2 oxide ion as well. Each oxide ion lose 2 electrons, so it will be 4 electrons, right? That need to be lose over here. So this will be the equation at anode, right, bachcho? Yes, sir. You can say that, sir. Over here we will find some gas which is moving from here, right? Oxygen gas which is removing from here, right? So this will be the gas you need to find out over there. The problem is this: the temperature is very high. The problem is this: the temperature is very high and we have carbon anodes. So at very high temperature, yeah, definitely it is graphite, and graphite you can say that is a giant covalent structure, so it has high melting and boiling point. But we have high melting point ऑफ ग्रेफाइट, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं. सो यू कैन से दैट पॉसिबिलिटी है एनोड पर पॉसिबिलिटी है दैट जो आपके पास कार्बन एनोड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, और चलो पूरा ना बनाए तो हाफ इक्वेशन भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है. तो ये 2 इक्वेशन पॉसिबल है कि वहां बन जाए, पॉसिबल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपको हर थोड़ी देर बाद एनोड को चेंज करना होगा. सो यू कैन से दैट चेंज एनोड आफ्टर every short interval. Change anode after every short interval. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Why are we using the possibility? I can't get it.
बेटा देखो पेपर में आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्हाट आर द पॉसिबल गैस प्रोड्यूस एट एनोड। डेफिनेटली आपके पास एनोड पे सिर्फ ऑक्सीजन गैस बन रही है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस बन रही है, क्योंकि आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दैट्स फाइन, आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही है। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें, टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा हाई है, फॉर सपोज 800 या 1000 अगर आपने दिया हुआ है कम कर भी, तो वो इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन एनोड से पॉसिबल है कि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव गैस होती है, उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बन सकती, आपको याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर ना। सो यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर द पॉसिबिलिटी, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जहन थोड़ा सा इस तरफ मूव हो कि हमारे पास है क्या सॉल्यूशन में और बन क्या सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी तो आपने साफ मना कर देना, भाई सल्फर का तो कोई कंटेंट ही नहीं है इधर, तो बनेगी कैसे, राइट। सो दिस इज द वे, आई जस्ट वांट कि आप इस तरह सोचें, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. now you can collect if you want to। यहाँ पर आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं एल्युमिनियम को, ठीक है ना। इसमें टैप लगा हुआ था, आप खोलकर कलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डेंसिटी हायर होगी, मेटल है तो नीचे आ जाएगा और यहाँ से गैसेस निकल रही होंगी, ठीक है बच्चों। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन होल दिस प्रोसेस। चलो इसको जल्दी से अपने पास कंप्लीटली लिख लो, ठीक है ना। मैं जब तक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Okay, so electrolysis of aluminum from its bauxite ore is completely finished. Now we are moving towards the extraction of iron. Now we need to discuss the one element which is less reactive than carbon, so we can extract this from its ore with carbon, right? So you can say that this element which is less reactive than carbon can be reduced by carbon, right? So let's move extraction of iron. Extraction of iron from its ore, from its ore, right? And what is the name of its ore? The name is the formula is Fe2O3, and this can be named as iron 3 oxide, and name of ore is hematite. You need to keep remember this name as well. For 1 mark in exam they can be asked this. So hematite is the name of the iron ore that you need to keep remember, hematite. Okay, so we need to talk about the extraction of iron from iron oxide, and the name of the process is known as blast furnace. The name of the process is known as blast furnace. अब इस process को आपने नाम क्या दिया हुआ है? Blast furnace, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके अंदर, आपके पास that you need to keep remember is, आपके पास सबसे पहले आपके पास फ्यूल की combustion होती है। So you can say that combustion of fuel. सबसे पहले क्या होती है? Combustion of fuel. तो आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्यूल को कंबस्ट करना पड़ता है, and right now in this reaction, or you can say that in this process, we are using carbon as a fuel. So when we combust carbon in the presence of oxygen, it will form what? Carbon dioxide, and the energy that is going to be utilized later on. So this is known as coke, red hot coke. जलता हुआ कोयला जो होता है उसको हम coke बोलते हैं, and this can be air, and you can say that oxygen, क्योंकि oxygen air से ही आती है. So you can say this कि air है या oxygen है, you can use any one of the name. Then if you see that carbon dioxide is actually, this carbon dioxide CO2 is a very, you can say that maximum stable compound of carbon, right? So if we use this, so this is not going to get more oxygen. इसके पास maximum level की oxygen आ गई है, carbon dioxide इससे ज़्यादा oxygen gain नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसके पास already सारी oxygen है, तो ये आयरन से ऑक्सीजन कैसे छीनेगा? नहीं छीन सकता, ठीक है ना। तो हमें कार्बन को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके पास ऑक्सीजन की थोड़ी सी गुंजाइश हो, ताकि वो आयरन से ऑक्सीजन छीन सके, ठीक है ना। तो वी नीड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट. So I am saying that in the second step, what I am trying to do in the second step, I am going to form a reducing agent. So you can say that formation of reducing agent. I am calling my second step as the formation of reducing agent. So I'm going to convert carbon dioxide into carbon monoxide now. So I just react carbon dioxide with more carbon. In this way, it is going to convert it into carbon monoxide.
right? And we already discussed this equation in redox reaction as well. So you can see this: carbon is oxidized by gain of oxygen, right? And carbon dioxide is reduced by loss of oxygen into carbon monoxide. So the one which is reduced is carbon dioxide, और इसको कराया किसने? Carbon ने. So carbon can be termed as a reducing agent. तो over here यहाँ पर एक reducing agent जो इस reaction में है वो है carbon, right? So this is actually reducing agent जो कि carbon dioxide को carbon monoxide में convert कर रहा है, and actually carbon monoxide itself a reducing agent जो कि अगले step में हमें reduction करवा कर देगा. Now what is going to be happen over here? You can see this. Now the carbon monoxide is actually changing the life of iron. Iron पहले iron oxide की form में था, अब it is going to be a solid, neutral, pure element, right? So it is going to be iron now, and the oxygen of iron can be gained by carbon monoxide and it become carbon dioxide. So for the balancing, you can write 3 over here, 3 over here. It's balanced equation. And I also talk about this in redox reaction, if you remember. So carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide, right? And iron is reduced to iron by loss of oxygen. So the one which is going to be reduced is actually right now iron oxide, which is going to be reduced. So the one which is going to be reduced, उसको कराया किसने होगा? बराबर वाले ने. So right now this is what reducing agent in this equation, right? अब ये तो हो गया हमारे पास iron pure, fine, हमारे पास आ गया. लेकिन we know that जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मिट्टी वगैरह भी होती है, और आयरन इतना सस्ता आपके पास आप कह लें कि मेटल है कि हम इसको बहुत ज्यादा प्योरीफाई करने में इस पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये बिकेगा तो ये हमें पैसे नहीं देके जाएगा, राइट? सो हमने जो इसके अंदर से मिट्टी होगी वो हमने कंप्लीटली सेपरेट नहीं की होगी, अब हम इसके अंदर सेपरेशन करेंगे. एंड हाउ कैन वी सेपरेट दैट? और उसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्चुअली यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करना पड़ेगा. अच्छा, इस प्रोसेस को अगर मैं नाम देना चाहूँ, सो यू कैन कॉल दैट रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट. यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास जो हम करवाने वाले थे वो हुआ है, ठीक है ना? नाउ आई एम डूइंग व्हाट? द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज thermal decomposition. I am going to do thermal decomposition of limestone. अभी मुझे करना है limestone को thermal decompose. And why I am doing this? Just look at over here. अब आपके पास क्या था? आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मैंने बच्चों हीट कर ब्रेक डाउन कर दिया. I just break it down by heating and it is going to form calcium oxide and carbon dioxide. Why I'm doing this? Because I want to remove sand from there, and sand is actually SiO2, which is acidic oxide. So I'm doing this to remove acidic impurities. So you can say that I just do this to remove acidic impurities, And what is acidic impurity that I want to remove is acidic impurity. कौन सी है जो मुझे remove करनी है? वो है silicon dioxide, which is मिट्टी, ठीक है ना? अब होगा कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो लास्ट स्टेप है इसमें आपके पास होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज calcium oxide is a basic in nature. All the metal oxides are basic except zinc and aluminum. So this is basic in nature. And right now we have silicon dioxide, which is acidic in nature. When they combine together, they will form a neutral product, which is calcium silicate. And we can call them as a slag. इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? Slag का नाम दे सकते हैं. Is that clear, every one of you? Yes. चलें, इसका एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में होता किस तरह से है. तो अगर हम देखें इसको तो ये आपके पास कुछ इस तरह का प्रोसेसर होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना? और एक नीचे हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ठीक है ना? Like this.
लाइक दिस। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके पास। एक इसी तरह ऊपर भी होता है हमारे पास इस पर। कुछ इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज एक्चुअली आपके पास यहाँ पर एक, यू कैन से दैट एक प्रोसेस यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन इन और आउट हो रही होती है। यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन इन और आउट हो रही होती है बच्चों। यहाँ से ऑक्सीजन इन हो रही है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से एयर इन हो रही है, और बाकी सारी चीजें हम यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है ना। और वो कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास, यहाँ से हम ऐड करते हैं हेमाटाइट और, ठीक है ना, यहाँ से हम ऐड करते हैं कोक, यानी कि वो जो बर्निंग कार्बन है हमारे पास, और लाइमस्टोन। ये तीन चीजें हम ऊपर से ऐड करें, एंड द फोर्थ वन इज नीचे से हम ऐड करें ऑक्सीजन। तो सारा प्रोसेसर यहाँ पर आपके पास, ये यहाँ पर सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर कि वी नीड टू कंसीडर दिस रिएक्शन। हमें दूर से देखना होता है, हम करीब जाके नहीं कर सकते, हाँ भाई हाँ कोल जल गया है, हाँ लाइमस्टोन ब्रेक हो गया, हम ऐसे नहीं कर सकते। वी नीड टू सी दिस रिएक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना। वहां पर जो डिफरेंट कलर आ रहे होते हैं फायर का, उससे हमें आइडिया लगाना होता है कि आपके पास क्या प्रोसेसर हो गया, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट लीव दैट। आपको बस क्या देखना है कि आपके पास 4 यहाँ पर रॉ मटेरियल है, हमने वो 3 ऊपर से ऐड किए और एक यहाँ से ऐड किया। आपके पास जो आयरन होगा ना, लिक्विड आयरन, वो यहाँ जमा हो जाएगा। लिक्विड आयरन विल बी कलेक्टेड ओवर हियर, डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो इट विल बी कलेक्टेड ओवर हियर एंड यू कैन विथड्रॉ दिस फ्रॉम हियर। लिक्विड आयरन को आप यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हो, यू कैन विथड्रॉ लिक्विड आयरन फ्रॉम हियर, राइट। और इसके ऊपर स्लैग, क्योंकि स्लैग की डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो इसके ऊपर आ जाए। यू कैन फाइंड आउट और यू कैन कलेक्ट स्लैग फ्रॉम हियर। So these are the things that you need to keep remember in the diagram, right? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या हो गई, रॉ मटेरियल। इफ यू टॉक अबाउट रॉ मटेरियल, सो राइट नाउ हमारे पास 4 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब बच्चे क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो कि आपने प्रोसेस में खुद ऐड किया है। तो आपने प्रोसेस में ऐड क्या क्या किया है, आपने कार्बन यानी कि कोल ऐड किया है, आपने ऑक्सीजन ऐड किया है, ये खुद ऐड किया आपने हेमाटाइट ओर ऐड किया है, आपने लाइमस्टोन ऐड किया है। अब आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब खुद ही बनकर खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने ऐड नहीं की। और मट्टी जो है एज अ इम्प्योरिटी आई है, तो वो हमने ऐड नहीं की, वो खुद से ही वहां मौजूद थी। So the 4 things that we added is carbon, oxygen, hematite ore, and limestone over there. These are the 4 things that we added over there. And if we talk about the reducing agent in this process, क्योंकि पेपर में कभी-कभार ऐसा भी सवाल वो पूछ लेता है, how many reducing agent in this overall process? तो right now हमारे पास टोटल 2 redox reactions हैं यहाँ पर, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ यूज हुआ है। Is that clear, every one of you? Yes. So this is the process that you need to keep remember for the extraction of iron. Am I clear to every one of you? Yes, sir. Yes, sir. चलें, आप इसकी हर एक पॉइंट को आप completely अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, and I'm just going to stop the recording, and if you have any questions you are